Okay. So let's write down a few more definitions in thermochemistry. So one thing now we should write is heat of formation. Heat of formation is defined as heat of formation is defined as the enthalpy change heat of formation is defined as the enthalpy change when 1 mole of a substance is formed when 1 mole of a substance is formed by reaction of its constituent elements by reaction of its constituent elements in their most stable form at standard conditions. Correct? So now we are talking of one particular type of reaction. In last class we wrote for any general reaction heat of reaction. Now we are looking on some special type of reaction. So one of which is a formation reaction. What is a formation reaction? When a substance is formed by reaction of its constituent elements. Here? So like I have to write formation reaction of CO2. How we will write the formation reaction of CO2? C solid. Carbon in its most stable form. C graphite plus O2 gas going to CO2 gas. This is formation reaction of carbon dioxide. Similarly, if I have to write formation reaction of calcium carbonate solid, what will be the formation reaction of CaO plus CO2 gas will not be the formation reaction. ये reaction है, but it is not a formation reaction. Formation reaction में the constituent should always be elements. The reactants cannot be compounds. The reactants have to be elements. So what will be formation reaction of calcium carbonate? Ca solid plus C graphite plus 3/2O2 gas going to CaCO3 solid. Again I am repeating, I am not saying कि ये reaction नहीं होगा. ये reaction होगा, इसकी कुछ heat भी होगी. But that we will simply call as heat of reaction. We will not call it as heat of formation because this is not a formation reaction. This is a formation reaction. Clear है? So heat of formation is a special category of heat of reaction. Yes, a special category of heat of reaction written only for formation reactions. And what are formation reactions? When a compound is formed by reaction of its constituent element. So how we will write heat of formation here? What will ऐसे लिखते हैं डेल्टा
H0 किसी भी रिएक्शन की हीट होती है, नीचे सबस्क्रिप्ट में F मतलब दिस इज अ फॉर्मेशन, और किसकी फॉर्मेशन है ये? CO2 गैस। सिमिलरली इसका कैसे लिखेंगे? डेल्टा HF0 CaCO3, और किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैसे लिखा था? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इसका हो जाएगा H0 ऑफ CO2 गैस माइनस H0 ऑफ C ग्रेफाइट माइनस H0 ऑफ O2 गैस, और इसका सिमिलरली हो जाएगा H0 ऑफ CaCO3 सॉलिड माइनस H0 ऑफ Ca सॉलिड माइनस H0 ऑफ C ग्रेफाइट माइनस 3/2 H0 ऑफ O2 गैस। क्लियर? चलो ये नोट करो जरा कुछ एग्जांपल। Sir, enthalpy of elements. जीरो, वी विल राइट दैट। पहले इसको नोट कर, नोट कर लिया, आगे लिखो। Since in a formation reaction, reactants are always elements. Since in a formation reaction, reactants are always elements. In their most stable state, reactants are always elements. In their most stable state, whose enthalpy already has been defined zero. Whose enthalpy already has been defined zero. मतलब इसमें क्या हो रहा है? ये जीरो है, कार्बन ग्रेफाइट की एंथैल्पी, O2 गैस की एंथैल्पी जीरो है। So what I can say by this expression, that heat of formation of CO2 is enthalpy of CO2. Similarly, from here, heat of formation of calcium carbonate is enthalpy of calcium carbonate. So what eventually I can say कि किसी भी कंपाउंड की एंथैल्पी क्या होती है? उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन। हाँ, तो आगे लिख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं सेंटेंस। तो लिखा क्या था? whose enthalpy already has been defined zero. Therefore, enthalpy of any compound, therefore, enthalpy of any compound is its heat of formation. Enthalpy of any compound is its heat of formation. ठीक है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो फिर से एक बार डिस्कस एक बार और चीज कर लेते हैं। हम लोगों ने जब थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो वी सेड कि अगर कोई भी एक जनरल रिएक्शन है, A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गोइंग टू C टाइम्स C D टाइम्स D, इस रिएक्शन का डेल्टा H0 निकालना है, क्या होगा? करेक्ट? और इसके लिए हमें क्या क्या चीज की नीड है? मोलर एंथैल्पीज ऑफ ABCD। अब ABCD या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स हो सकते हैं। अगर ABCD एलिमेंट्स हैं तो उनकी एंथैल्पी क्या होगी? जीरो। अगर उनमें से जो कंपाउंड्स हैं उनकी एंथैल्पी क्या होगी? उनकी हीट्स ऑफ फॉर्मेशन। तो अब अगर हमें किसी भी रिएक्शन में पूरा एंथैल्पी चेंज निकालना है तो व्हाट आई विल नीड इन दैट एक्सपेरिमेंट? I will need a table of heat of formations of all compounds, and
the problem is done. Yes. Because elements की enthalpy 0 और compounds की enthalpy उनकी heat of formation. Clear? चलो आगे Sir? हाँ बोलो. सर वो जो हीट ऑफ फॉर्मेशन रहेगी कंपाउंड्स की वो हमेशा नेगेटिव रहेगी क्या? नहीं, not necessary. Heat of formation can be positive, can be negative. Can you tell me किन compounds की heat of formation positive होगी? Explosives की. Highly reactive, highly unstable compounds will have heat of formation positive. जितना heat of formation negative है मतलब उतना वो compound stable है. जितना positive होगा उतना वो compound unstable है. Clear? Okay. सर हाँ. सर हमने 0 तो 25 डिग्रीज पे डिफाइन किया था, तो इधर एसटीपी पे कैसे? STP कहाँ बोला है यार? कहाँ बोला STP? Standard condition, thermochemistry की standard conditions are 25 degree 1 atm. Gaseous state की standard condition is 0 degree 1 atm. Except gaseous state in entire physical chemistry, standard state always will mean 25 degrees and 1 atm. In gaseous state, standard state means 0 degree and 1 atm. देखो ऊपर ये सिंबल लगाया है ना जी का. लास्ट क्लास ऑल्सो आई टोल्ड दैट ये सिंबल ऊपर है मतलब 25 डिग्री 1 atm पे मेजरमेंट है. सर हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव है मतलब हीट लेनी पड़ती है उससे. हीट वो दे रहा है, उसकी एंथैल्पी कम हो रही है, एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी आती है ना. ओके. So when we say that a reaction takes place at a particular temperature and under some pressure, so what does that mean? ये कंडीशन H नॉट नहीं आएगा, H आएगा केवल वहाँ. तो निकालना भी अभी सीखेंगे. टेम्परेचर चेंज हो गया तो कैसे, पहले सब कुछ 25 डिग्री 1 atm पे निकाल लेते हैं. ओके, नेक्स्ट लेट्स राइट डाउन. Heat of combustion. इसमें लिखो. Heat of combustion is defined as. So heat of formation will be zero only for the noble gases, right? Heat of formation is zero for all elements. In comfort. भाई सपोज एक मिनट ये भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं. I want to write heat of formation of H2 gas. कैसे रिएक्शन लिखेंगे H2 के फॉर्मेशन का? 2H. यही होगा ना रिएक्शन. मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा? एलिमेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो है ना. एलिमेंट्स की एंथैल्पी जीरो है. करेक्ट. व्हाट विल बी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नियॉन गैस? नियॉन गैस गोइंग टू नियॉन गैस. करेक्ट. एलिमेंट्स के लिए रिएक्शन होगा नहीं ना. उस एलिमेंट से ही एलिमेंट बना रहे हो तो डेल्टा H डेफिनेटली विल बी जीरो. ओके. हीट ऑफ कंबशन में लिखो. हीट ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज. हीट ऑफ कंबशन इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance is burned in sufficient oxygen, when 1 mole of a substance is burned in sufficient oxygen to produce stable products, to produce stable products which cannot be burned, which cannot be burned any further, which cannot be burned any further.
तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं हीट ऑफ कंबशन? सपोज कोई कंपाउंड लेते हैं C3H8, कैसे लिखेंगे इसका हीट कंबशन रिएक्शन? प्लस O2 to give CO2 3CO2 plus 4H2O 5O2 आ जाएगा यहाँ, CO2 गैस, H2O liquid. So how we will write heat of combustion? Will be 3 times enthalpy of CO2 plus 4 times enthalpy of H2O minus enthalpy of C3H8. Oxygen की enthalpy 0 because it is element. Clear? सर यहाँ पे बर्न कर रहे हैं ना, हाँ. तो मतलब ये हीट ऑफ कंबशन मतलब वही हीट निकालना है। Like, समझा नहीं, हीट ऑफ कंबशन मतलब कंबशन का मतलब क्या होता है? बर्निंग। बर्निंग। तो अगर किसी भी चीज को बर्न कर रहे हो उसमें कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है, कितनी हीट मिल रही है, वो निकाल। हाँ मतलब जितनी हीट हम दे रहे हैं बर्न हम क्यों देंगे बर्न होने में? बर्न होने में हमें मिलती है। तुम किसी चीज को बर्न करते हो, तुम्हें हीट मिलती कि तुम देते हो? नेट निकालते हैं। नेट की ही बात हो रही, नेट में तुम्ही को मिलेगी ना हीट। हाँ सिस्टम देगा सराउंडिंग। तो भी कुछ देना पड़ेगा। इनिशिएट करने के लिए क्या, इनिशिएट करने की बात थोड़ी ना हो रही है, हमारा टोटल नेट की हो रही ना। ओके, इसको नोट करो। तो ऐसे निकालेंगे हीट ऑफ कंबशन। कार्बन ग्रेफाइट का कंबशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिख सकते हो? हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट विल बी H naught of CO2 plus minus H naught of C graphite minus H naught of O2 गैस। ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे। ये देखो फॉर्मेशन रिएक्शन भी था ना CO2 का। हाँ सर। हाँ। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज आल्सो इक्वल टू हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। करेक्ट? C3H8 वाले रिएक्शन में हमने O2 को क्यों कंसीडर नहीं किया? एलिमेंट है, जीरो होता है। सेकंड वाले में भी? तो भी ये सब जीरो नहीं। तो सेकंड वाले रिएक्शन में हमने एनर्जी रिलीज कैलकुलेट किया, मतलब वो साइन अपने आप आएगा। जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही वो नेगेटिव आएगा डेल्टा H नॉट, जहाँ एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पॉजिटिव आएगा। हर समय नेगेटिव होगी। कंबशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। C3H8 का हीट ऑफ फॉर्मेशन तो बिल्कुल अलग चीज होगी। ऐसे लिखोगे रिएक्शन 3 कार्बन ग्रेफाइट प्लस 4H2 गैस गोइंग टू C3H8 गैस। ये उसका फॉर्मेशन रिएक्शन होगा। क्लियर? यस सर। हाँ, सर अगर कोई रिएक्शन में एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा हो तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा उसकी? क्या दूसरे न्यूक्लियर रिएक्शन टाइप जैसे। न्यूक्लियर रिएक्शन तो यहाँ कैसे पढ़ोगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में? सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है यहाँ। न्यूक्लियर रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नहीं होते हैं, वो एक्सोअर्जिक और एंडोअर्जिक होते हैं। उनकी तो पूरी स्टोरी अलग होती है। ओके, आगे लिखते हैं हीट ऑफ कंबशन। ऐसे लिखते हैं
Since combustion is always a exothermic reaction, since combustion is always a exothermic reaction, heat of combustion is always negative. Heat of combustion is always negative. ठीक है? Except for N2 and F2. इन दो चीजों का कंबशन एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक नहीं होता है। रीजन बीइंग वेरी सिंपल, N2 का ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और F2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फ्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थिंग देन ऑक्सीजन। तो उसमें फ्लोरीन टेक्स नेगेटिव चार्ज, नॉट ऑक्सीजन, करेक्ट? तो F2 और N2 are two things whose combustion is endothermic, not exothermic. Apart from that, any other element or compound you burn, reaction will always be exothermic. Clear? हाँ। सर क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो उससे मतलब क्या? भाई इसमें ये एक्सोथर्मिक होने का रीजन यही है ना कि ऑक्सीजन 2- में जाता है, वहाँ से उस ऑक्साइड स्टेट की एनर्जी रिलीज होती है, तो इसमें ऑक्सीजन +2 स्टेट में जाएगा जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा। ठीक है? हाँ सर, सर थाने सेंटर से सर आपने हीट ऑफ रिएक्शन H2O के लिए नहीं लिखा क्योंकि दैट इज इन लिक्विड स्टेट। क्या नहीं लिखा? हीट ऑफ रिएक्शन H2O के लिए नहीं लिखा है ना आपने, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट। लिखा तो है, हीट एंथैल्पी लिखी है तो है H2O की। किस पार्ट की तुम बात कर रहे हो? सर जैसे आपने CO2 के लिए लिखा है वैसे H2O के लिए नहीं लिखा है क्योंकि वो लिक्विड स्टेट। नहीं, वो भी लिख सकते हो बिल्कुल, H2O के लिए भी लिख लो। H2 गैस, ये तो हम एक और एग्जांपल ले रहे थे। हाफ O2 गैस goes to H2O liquid. H2O की हीट ऑफ फॉर्मेशन हो गई। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O liquid will be H0 of H2O liquid minus H0 of H2 gas minus half H0 of O2. लिक्विड में तो क्यों नहीं लिख सकते? हीट ऑफ फॉर्मेशन बिल्कुल लिख सकते हैं। सर बट बोलो। सर बट जो सेकंड रिएक्शन रहेगी वो इनकम्प्लीट रहेगी ना, क्योंकि आपने बोला कि जब तक कि वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में नहीं जाता तब तक कि हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो फिर नहीं, एक मिनट, लेट्स गेट दिस क्लियर। सेकंड रिएक्शन मतलब ये कौन सा कह रहे हो? नो सर, C3H8 के नीचे जो आपने सेकंड लिखा है वो ये वहाँ पे CO2 की जगह हम लोग कंबशन 4th स्टेप लिखेंगे। एक मिनट सुनो। Please listen here. Stop talking and listen. We are here talking of heat of combustion. So whenever we have any substance, उसकी अगर heat of combustion निकालनी है, तो we will burn that substance completely. So let's say we have a substance like C3H8. We want to find out its heat of combustion. We will write a reaction of its combustion, complete combustion. अब इसकी heat of combustion क्या होगी? Enthalpy of products minus enthalpy of reactant. इसके products क्या है? 3 CO2 के मॉलिक्यूल, 4 H2O के मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट क्या है? C3H8 और 5 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एलिमेंट है तो उसकी एंथैल्पी 0। तो हाउ आई विल राइट डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन? व्हाट विल बी डेल्टा H नॉट?
that I will call as heat of combustion of C3H8 will be 3 times H naught of CO2 plus 4 times H naught of H2O liquid gas minus H naught of C3H8. करेक्ट? अब ये हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट करने के लिए अगर प्रॉब्लम हमसे इसकी हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेट कराना चाहता है तो द प्रॉब्लम विल गिव मी एंथैल्पीज ऑफ CO2, H2O लिक्विड एंड C3H8. दिस प्रॉब्लम इज ओवर हियर. हमें प्रॉब्लम में ये वैल्यूज दी जाएंगी. क्लियर? ओके सर. हाँ, थैंक यू. इसको आगे नेक्स्ट रिएक्शन से रिलेट कर, वो एक अलग एग्जाम्पल था. नीचे जो I wrote of carbon and I wrote here of C3H8, those were different problems. This problem ends there. To calculate this heat of combustion, we will need enthalpies of these three things, and they will be given to us somehow in the problem. सर वो CaO को सेपरेट किया हमने, C और O को सिर्फ फॉर्मेशन, बाकी कैसे किया? बोलो. सर वो जो सेकंड इक्वेशन लिखा था आपने कार्बन वाला, हाँ सर उसमें आपने कार्बन की हीट ऑफ कंबस्शन निकाली थी. हाँ सर तो उसमें फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है सर? अलग लिखा था सर आपने. इसमें हाँ मतलब क्या सर वो जो हीट ऑफ कंबस्शन का आपने लिखा था. हीट ऑफ कंबशन हो गई. हाँ सर, तो इसमें दोनों जो है आपने जो लेफ्ट में लिखा और राइट में लिखा है, दोनों अलग अलग है सर थोड़े. कैसे अलग है? सर आप भाई सर हाँ ये दोनों जीरो है, इसको हटा दो. हाँ ये है इसका. So you had said that F2 is more electronegative than O2, sir. But how does that matter, sir? For an endothermic reaction. बिकॉज उसमें ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी लग जाएगी ऑक्सीजन पे. Okay. अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं लगेगी. Oh, okay. यहाँ तक क्लियर है कंबशन तक? थ्री रिएक्शन जैसे दो एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे हम लोग दो एक साथ कंबशन. रिएक्शन डेफिनेशन क्या लिखी है? When 1 mole of a substance burn, तो केवल 1 मोल एक ही सब्सटेंस का बर्न जब करता है उसी को कंबशन रिएक्शन कहते हैं. हाँ सर एंथैल्पी का एक्चुअल मीनिंग बता सकते हैं क्या होता है? मींस वो टोटल एनर्जी होता है. टोटल एनर्जी होती है. ओके सर. हाँ सर आपने वो N2 के लिए रीजन क्या बताया? N2 में ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, उसको ब्रेक करने में बहुत एनर्जी स्पेंड हो जाती है. बहुत एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए. ये फॉस्फोरस के केस में नहीं होता है. नहीं, फास्फोरस P2 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है. फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड होता है. ओके नाउ नेक्स्ट लेट्स राइट डाउन bond energy. Bond energy is defined as part of heat of reaction. these are different definitions which we are writing. Bond energy is defined as the average energy required is defined as the average energy required to break all bonds of a type, to break all bonds
of a type in a compound. To break all bonds of a type in a compound. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, उससे समझ। हाँ बोलो। Bond energy is defined as the average energy required to break all bonds of a type in a compound. What do we mean by this? Let's understand. Let's say we have a compound like this. You know, जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, we will have to give something. We will have to supply something. Let's say when I break this bond, the energy required is some A1. When I break this bond, A2, let's say, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11. तो इस कंपाउंड के सारे बॉन्ड्स ब्रेक करने में सपोज दीज आर द एनर्जीज व्हिच वी आर रिक्वायर्ड। अब इस कंपाउंड में कितने टाइप के बॉन्ड्स थे? एक तो थे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, एक थे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक थे कार्बन कार्बन डबल। 3 टाइप के बॉन्ड्स थे इस पूरे कंपाउंड। नाउ हाउ वी विल डिफाइन बॉन्ड एनर्जी? तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इस टाइप के सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने का एवरेज। तो इस टाइप के टोटल बॉन्ड्स को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगी थी? A1 से लेके A8 तक। तो एवरेज क्या हो जाएगा? दिस मच। सो दिस विल बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक करने में टोटल एनर्जी कितनी लग रही है? A9 प्लस A11 by 2. So that will be bond energy of carbon carbon. And carbon double bond carbon को ब्रेक करने में 8 है। So that will be its bond energy. Here? ये इंडिविजुअल A1, A2, A3, A4 इनको क्या बोलते हैं? किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी we call as bond dissociation energy. Is the energy required to break a particular bond. सर A1 to A8 का वैल्यू सेम क्यों नहीं रहता? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। मीथेन ले लो, करेक्ट? इसका एक बॉन्ड तोड़ा, मान लो एनर्जी लगी A1। एक बॉन्ड तोड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा ना, और ये अलग हो गया हाइड्रोजन। ये मिथिल फ्री रेडिकल है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ये sp2 है, ये sp3 हाइब्रिडाइज था। अब अगला हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ोगे अलग एनर्जी लगेगी, उसके बाद अगला तोड़ोगे फिर अलग एनर्जी लगेगी। क्लियर? तो एनर्जी सेम नहीं लगेगी। So ये bond energy of CH for this compound. For this compound. तो बॉन्ड एनर्जी क्या है? एक्चुअली एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दैट टाइप। अगर उस टाइप का एक ही बॉन्ड है
तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी. सर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी रहेगी? A10 की रहेगी क्या? हाँ, सबसे ज्यादा तो A10 रहेगा. डबल बॉन्ड है. थैंक यू. सर हाँ, सर आपने बोला ना कि A1 और A8 का एनर्जी सेम नहीं रहेगा, तो वो समझा नहीं सर. अरे एक एक बॉन्ड अगर तोड़ते जाओगे, ये हाइड्रोजन हटा दिया तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा ना. अगला बॉन्ड तोड़ना और डिफिकल्ट होगा या कुछ होगा, इजी होगा, डिपेंडिंग हाइब्रिडाइजेशन कैसे बदल रही है. मीथेन में एग्जांपल दिया ना कि मीथेन में चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पहले इक्वल है, किसी का भी बॉन्ड ब्रेक करो इक्वल एनर्जी लगेगी. लेकिन जब एक ब्रेक कर दिया उसके बाद तुम्हारे पास स्ट्रक्चर बचा है CH3, उसमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी इस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड से अलग होगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगी कार्बन की. ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है CH3. ओके सर. Okay, next write down. Heat of atomization. Stop talking here. Okay, let's write heat of atomization. इसका दो वे में डिफाइन करेंगे इसको, दो अलग अलग चीजों के लिए. पहले लिखते हैं फॉर एलिमेंट. तो इसमें लिखो फॉर एलिमेंट्स हीट ऑफ एटोमाइजेशन इज डिफाइंड एज फॉर एलिमेंट्स heat of atomization is defined as the enthalpy change to produce one mole isolated gaseous atoms of any element, to produce 1 mole isolated gaseous atoms of any element from the most stable elemental state of the element, from the most stable elemental state of the element. अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना थोड़ा. कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल लेते हैं. तो सपोज हमें दिया है हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन. हमें एक ऐसा दिया है दैट हीट ऑफ एटोमाइजेशन
of hydrogen is x kilojoules per mole. इसका इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, एलिमेंट की बात कर रहे हैं. तो आई नीड टू राइट अ रिएक्शन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H atoms, H gas, 1 mole of isolated gaseous atoms. कहाँ से बनाने? रिएक्टेंट कौन होना चाहिए? इस एलिमेंट की सबसे स्टेबल एलिमेंटल स्टेट, वो क्या है? H2 गैस. और ये मुझे लेना पड़ेगा, करेक्ट? तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा, that will be heat of atomization of hydrogen. कार्बन के लिए मुझे लिखना है heat of atomization. प्रोडक्ट क्या चाहिए मुझे? C गैस, C ग्रेफाइट से, करेक्ट? क्लियर है? तो इस रिएक्शन के डेल्टा H को हम लोग क्या बोलेंगे? एटोमाइजेशन ऑफ H. इसको एटोमाइजेशन ऑफ C. किसी और चीज के भी बराबर है क्या ये? कैन यू रिलेट विथ एनी अदर थिंग वी हैव डन टिल नाउ? हीट ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन, बॉन्ड एनर्जी, किसी से कुछ रिलेट कर सकते हो? दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड, करेक्ट? तो बॉन्ड एनर्जी ना देके हम तुम्हें एटोमाइजेशन दे दें, तुम उससे बॉन्ड एनर्जी निकाल सकते हो. Can you relate this to something? This is sublimation of carbon. Solid से गैस बना रहे हैं. तो देख लो, इस तरह से अलग अलग नाम दिए जाएंगे, तुम्हें उससे कैसे कन्वर्ट करना है. तो this is sublimation of carbon graphite. Clear? बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? अगला इसमें लिखते हैं आगे. हाँ, लिख लो. तो भैया उसको बॉन्ड एनर्जी तो कहोगे डिसोसिएशन. Basically, there's no perfect way of representing heat of atomization. So we basically related, right? नहीं, why it is not a perfect? As in, हम लोग जैसे पहले reaction में used to You write can write, yes, still you can write. I am write it H naught of H gas minus half times H naught of H2 gas. So that is 0. That is 0. It is also formation of H atoms. हाँ, आगे कंपाउंड्स के लिए लिखते हैं. The atomization, the rate of atomization will always be equal to the rate of formation, right? Of that element, atom, gaseous atom. अगला लिखो. For compounds, heat of atomization is defined as. For compounds, heat of atomization is defined as the enthalpy change is defined as the enthalpy change when 1 mole of a compound
is broken into isolated gaseous atoms. When 1 mole of our compound is broken into isolated gaseous atoms. अच्छा, एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। इन सारी डेफिनेशंस में यू मस्ट बी नोटिंग, आई एम टेलिंग किसी एक चीज का 1 मोल बार बार ना, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जब आप रिएक्शन लिखेंगे, कई लोग इस रिएक्शन को H2 गोइंग टू 2H भी लिख सकते थे, वो भी सही है ना, लेकिन जिसका 1 मोल बार बार आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, बैलेंस करते समय आपको उस चीज का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 रखना है। तो यहाँ हमने क्या बोला था, 1 मोल ऑफ एटम, तो आई वॉज बाउंड टू कीप दिस प्रोडक्ट साइड स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज 1। बाकी सब अब इसके हिसाब से अरेंज होंगे। इस डेफिनेशन में किसको 1 रखना है, उस कंपाउंड को जिसको ब्रेक कर रहे हैं, करेक्ट। फॉर्मेशन में किसको रखना था, 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म, प्रोडक्ट को। कंबशन में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न, रिएक्टेंट को। तो योर बैलेंसिंग शुड बी ऑलवेज 1 कोएफिशिएंट फॉर हुज 1 मोल यू आर राइटिंग। क्लियर। तो अब जैसे कंपाउंड का एग्जांपल ले ले, मीथेन का। मीथेन की हीट ऑफ एटोमाइजेशन अगर Y दी है तो क्या मतलब होगा, CH4 गैस को कैसे ब्रेक कर रहा है, C गैस प्लस 4H गैस, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, करेक्ट। H2 नहीं बनाओगे यहाँ। So this will be atomization of methane. Can you relate to some other thing? फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन के रिएक्शंस में प्रोडक्ट साइड केवल एक चीज होती है, 4 टाइम्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। क्लियर। सर आप कंपाउंड्स के लिए एक और एग्जांपल दीजिए। हाँ बोलो, कोई भी अपने मन से कंपाउंड बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 solid goes to Ca gas plus C gas plus 3O gas. This will be heat of atomization of calcium carbonate. अगर हम इससे ऐसे रिएक्शन है, अगर हम इसे फिक्स नहीं करेंगे कन्वेंशन कि इसका 1 मोल ही लेना है, तो वैसे भी हम कैन जस्ट इतना कुछ डिफरेंस होना, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। समझो बात को, तुमको दिया गया हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन 50 किलो जूल पर मोल, तुमने वहां लगा दिया 2 मीथेन पे लिख दिया, तो तुम्हारी इक्वेशन के हिसाब से 2 मोल मीथेन पे 50 किलो जूल है, जबकि एक्चुअल तुम्हें डाटा दिया जा रहा है 1 मोल मीथेन पे 50 किलो जूल है। Then we'll consider 100, right? तो वो कंफ्यूजन क्यों करनी है, सीधे सीधे जो दिया उसी को 1 रख लो। हर रिएक्शन में इस तरह की कन्वेंशंस तोड़ोगे, कहीं पे एक जगह स्लिप हो गया माइंड से, यू विल एंड अप इन ऑल, क्योंकि दीज ऑल थर्मोकेमिस्ट्री प्रॉब्लम्स विल बी जनरली 5-6 रिएक्शंस गिवन टुगेदर, you have to rearrange them, add them. If you will not follow a proper convention, same convention for all, you will make a mistake somewhere in stoichiometric coefficient. So, yes, this will be atomization of calcium carbonate solid. Can you tell me इसको कैसे relate, correlate और चीजों से कर सकते हैं? Let's see. Can you correlate this with other things? क्या? So sublimation. Correct. This is पहले sublimation of calcium carbonate plus bond energy. कौन सी bond energies लगेंगी इसमें?
Sublimation through क्योंकि कभी भी जब मुझे बॉन्ड तोड़ने हैं और एक सॉलिड है, मैं अगर एनर्जी दूंगा उसके बॉन्ड तोड़ने के लिए, पहले सॉलिड गैस बनेगा, जब गैस बन गया तब अंदर के बॉन्ड्स टूटेंगे। पहले तो मॉलिक्यूल बाहर के बॉन्ड्स टूटेंगे, फिर मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड्स टूटेंगे। हाँ भाई, कैसे बनाने हैं बॉन्ड्स कैल्शियम कार्बोनेट में? CO बॉन्ड कितने? कार्बोनेट का स्ट्रक्चर नहीं किया है? लो, बॉन्डिंग में शायद अभी किया नहीं तुम लोगों ने, तो अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। Once you do the carbonate structure in bonding, चलो, is this clear? आगे आ जाते हैं। क्या? वो बॉन्ड एनर्जी CaCO3 का CO3 का बॉन्ड एनर्जी टोटल ये भी तो बॉन्डेड है, आयनिक बॉन्ड की एनर्जी भी आएगी ना। तो पहले Ca2+ और कार्बोनेट की आयनिक बॉन्ड एनर्जी, फिर कार्बोनेट के अंदर की कोवेलेंट बॉन्ड एनर्जी। अलग-अलग क्यों नहीं लिखा है सर? बिकॉज यू डू नॉट नो कार्बोनेट स्ट्रक्चर ना, तो आई लेफ्ट वो टोटल है पूरा उसका। करवाया पर as in minus है। ऐसा होता है कार्बोनेट स्ट्रक्चर। ये नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो इसमें रेजोनेंस होती है। ये बाकी ये गाली कर रहा है। सीरियसली नहीं कर रहा है। Okay, write down Hess law. लिखो। Hess law states that enthalpy change for a reaction. Hess law states that enthalpy change of a reaction remains same. Enthalpy change of a reaction remains same whether the reaction is carried out in a single step, whether the reaction is carried out in a single step or multiple steps. So, let's say we have a reaction like this. A plus B goes to C plus D. Enthalpy change of this reaction is, let's say, delta H.
We have another reaction. C plus E goes to F. Enthalpy change of this reaction is delta H2. We have a third reaction. A plus B plus E goes to D plus F. Enthalpy change of this reaction is delta H3. If I add the first and second reaction, I am getting third reaction. So here I can say I am doing this reaction in single step, and here I am doing the same reaction in two steps. So Hess law is saying that enthalpy change will remain same. So basically, very simply, it is saying that if you add two reactions, you can add their enthalpy change. Clear? Okay. So Hess law is clear. So here we will do rearrangement of given reactions, add them. If we add two reactions, we can add their enthalpy change. Clear? Let's say we are given a reaction like this. C6H10 cyclohexene plus hydrogen is going to C6H12. C6H10 plus H2 is going to C6H12. Correct? This is a reaction given to us. इसका डेल्टा H नॉट निकालना है. If you remember when we started thermochemistry, what we said, अगर किसी भी रिएक्शन को ओपन वेसल में करना है या क्लोज वेसल में करना है और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें क्या कैलकुलेट करना रहता है उसके लिए? दो चीजें. एक तो डेल्टा NGRT और एक डेल्टा H नॉट रिएक्शन. करेक्ट? तो सपोज यही एक रिएक्शन दिया, तो हाउ वी विल कैलकुलेट delta H naught of this reaction? What are the ways to calculate delta H naught of the reaction? Now, what way we will use to calculate delta H naught of the reaction will depend on what is the information given to us in the problem. Some problems will give us heat of formation. Correct? तो सपोज एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इस रिएक्शन के बारे में कुछ निकालना है, डेल्टा H नॉट निकालना है, और ये प्रॉब्लम तुम्हें इस रिएक्शन के सारे कंपाउंड्स और रिएक्टेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन दे देगा एज डाटा. So how you can write delta H naught of this reaction? कैसे लिख लेंगे? Heat of, how you will write this? Enthalpy of C6H12 minus enthalpy of C6H10. हाइड्रोजन की तो जीरो एलिमेंट है, और किसी भी कंपाउंड की एंथैल्पी क्या होती थी? उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन. So enthalpy of C6H12 I can write as heat of formation of C6H12 minus heat of formation of C6H10. अगर ये दोनों वैल्यूज मुझे न्यूमेरिकली दी हैं प्रॉब्लम में,
So directly I will substitute it here and I will get delta H naught of this reaction. Clear? कोई दिक्कत इसमें? तो किसी भी प्रॉब्लम में अगर हीट ऑफ फॉर्मेशंस गिवन है, तो हाउ वी विल कैलकुलेट डेल्टा H naught of reaction? So it will be summation of heat of formation of products minus summation of heat of formation of reactants. तो अगर मुझे हीट ऑफ फॉर्मेशन सबकी मालूम है, तो टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सर अगर रिएजेंट यूज हुआ तो क्या रिएजेंट लिखा तो रिएक्टेंट्स की कैटलिस्ट पूछना। हाँ कैटलिस्ट पूछना। कैटलिस्ट बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ सर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट थोड़ा नहीं करता है, तो जितना कैटलिस्ट पहले लेते हो उतना ही बाद में ही मिलता है, वो कहीं कंज्यूम होता ही नहीं है, ना प्रोड्यूस होता है, तो वो एंथैल्पी चेंज में क्यों इन्वॉल्व है? ओके सर। ये रिएक्शन भी अपने आप थोड़ी ना होगा, इसके लिए कैटलिस्ट लग रहा है, पीडी निकल और करेक्ट। तो स्पीड अप करता है रिएक्शन को, तो स्पीड अप करता है ना, टाइम कम करता है। यहाँ टाइम की तो कोई बात नहीं, फिर उसका एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है। स्पीड अप करता है मतलब वो रिएक्ट होता होगा। स्पीड अप करता है वो कैसे करता है? वो काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स आर टू बिल्कुल डिफरेंट थिंग। काइनेटिक्स का कोई भी रूल थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल नहीं करेगा, थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी रूल काइनेटिक्स कंट्रोल नहीं करेगा। स्पीड ऑफ अ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सम अदर extremely different factors. This is energetics of a reaction. It is controlled by completely different parameters. So if an element like O is present in the form of O3, will it have heat of formation then? Because some energy is required to. O3 का तो लिखा ही था ना, पॉजिटिव होता है एंथैल्पी. Thank you, sir. तो सबसे पहला मेथड क्लियर है. अगर हम लोगों को हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तो कैसे निकालना है? टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ओके, इन सम प्रॉब्लम्स rather than heat of formation, we will be given all the heat of combustion. Correct? तो सपोज वही प्रीवियस एग्जाम्पल में उस पर कोई न्यूमेरिकल दिया है, उस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट निकालना है, एंड वी आर गिवन हीट ऑफ कंबशन ऑफ C6H10. We are given heat of combustion of H2. We are given heat of combustion of C6H2. ये तीनों वैल्यूज हम लोगों को बता देना है और इनकी हेल्प से हमें डेल्टा H नॉट रिएक्शन निकालना है. अगर हीट ऑफ कंबशन C6H10 का दिया हुआ, मतलब किस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया हुआ, कैसे लिख सकते हैं रिएक्शन इसका कंबशन का? C6H10 प्लस O2 goes to 6CO2 प्लस 5H2. तो O2 के कितने हो गए? 17/2. तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हमें गिवन है. हाइड्रोजन का एंथैल्पी चेंज क्या होगा? सॉरी, कंबशन क्या होगा? H2 plus half O2 going to H2. इसका भी एंथैल्पी चेंज हमें गिवन है. C6H12 का कंबशन कैसे लिखेंगे? C6H12
plus O2 goes to 6CO2 plus 6H2O. करेक्ट? इसका भी एंथैल्पी चेंज होने के लिए. Now you see, if I add first and second reaction and subtract the third मतलब इस रिएक्शन को if I write in a reverse way, रिवर्स वे में अगर इसको लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा ये रिएक्शन? 6CO2 plus 6H2O goes to C6H12 plus 9O2. और रिएक्शन को रिवर्स किया तो उसका एंथैल्पी चेंज भी नेगेटिव हो जाएगा. नाउ इफ आई ऐड ऑल दीज थ्री, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एंड वी गेट आवर रिक्वायर्ड रिएक्शन. करेक्ट? Yes, sir. So by Hess law, what will be delta H naught of reaction? Combustion of C6H10 plus combustion of hydrogen minus combustion of C6H12. So I can also write delta H naught of reaction as, देखो यहाँ से जनरलाइज करते हैं अब इसको, summation of heat of combustion of reactants minus summation of heat of combustion of, अगर heat of combustions दी हुई है हमें प्रॉब्लम में, तो heat of combustion of reactants minus heat of combustion of products will give us delta H naught of reaction. अगर heat of formations दी है तो formations of product minus reactants will give us delta H naught of reaction. क्लियर है? तो डिपेंडिंग प्रॉब्लम में क्या इंफॉर्मेशन, क्या डाटा गिवन है? हाँ बोलो सर, प्लीज एक बार रिपीट कीजिए. ये तीन वैल्यूज हमें दी थी कंबशन की, हम लोगों ने उनके कंबशन रिएक्शंस लिख लिए. करेक्ट? तीसरे वाले रिएक्शन को रिवर्स कर लिया और ऐड कर लिया. अप्लाइंग हेस लॉ, आई कैन ऐड देयर एंथैल्पी चेंजेस आल्सो. So I am getting delta H of reaction as sum of these three enthalpy changes, which will be combustion of C6H10 plus combustion of hydrogen minus combustion of C6H12. So I can generalize. This is heat of combustion of reactants minus heat of combustion of products. Sir, can we see that delta H naught C of H2 अगर given रहेगा, delta H naught C of H2 अगर given है 1 मोल के लिए, तो सर 2 मोल के लिए उसका डबल होगा. हाँ, 2 मोल के लिए उसका डबल. कैंसिल नहीं होगा तो गलती हो गई. तुम्हें ऐसे रीअरेंज करना है कि हमेशा कैंसिल हो जाए. जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हाँ, मल्टीप्लाई कर सकते हो. क्लियर है यहाँ तक? सर, अगर एक की हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हो और एक का हीट ऑफ कंबशन दिया हो तो तब वो सोचना पड़ेगा, कुछ हम लोग को काम करने पड़ेंगे. जेई में तो सीधे सीधे ऐसे थोड़े ना आएगा, ऑब्वियसली मिक्स आएगा. वी विल प्रैक्टिस. आधा पार्ट उधर से करेंगे, आधा पार्ट कहीं और से करेंगे. अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे. ये 1 मोल के लिए तुमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, मतलब तुम उतने मोल्स के लिए कर लो. ठीक है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्लास वी विल सी if bond energies are given, then how we calculate delta H. Okay? Yes. So we'll stop here. Thank you, sir.